Hello students, myself is Parminder Singh from Prab Kirpa classes. Today we are going to do the chapter 8 motion. We are going to do all the questions which are there in the NCERT book. So let us start. Question number first. An object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. Answer: yes, an object can have zero displacement even when it has moved through a distance. For example, an object moves from point O to A and distance covered is 10 kilometers. Then the object travels back to point O. The total distance covered is 20 kilometers. Here the displacement is 0 as the final position of the object is the same as the initial position of the object. Here one important point to note is the difference between distance and displacement. Distance is the length of the path that the object travels, whereas displacement is the shortest length between an object starting and ending point. Displacement also tells us the direction. To clarify the difference between distance and displacement, here we have given a photograph. You will find from this photograph that when a person moves from one point to other point B, the distance traveled is much more when as compared to the displacement. तो चलो अब हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझ भी लेते हैं. इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल करता है तो क्या उसकी डिस्टेंस कवर करने के बाद में भी क्या उसकी जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है? अगर हाँ, तो हमें उसके बारे में कोई एग्जांपल देनी है. आंसर है हाँ. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, कोई डिस्टेंस कवर करता है, तो इसके बावजूद उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है. यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक डिस्टेंस कवर करता है और ये डिस्टेंस होती है 10 किलोमीटर, और वह ऑब्जेक्ट वापस फिर ए पॉइंट से ओ पॉइंट को ट्रेवल करता है. तो इससे क्या होता है कि वो उसी पॉइंट पर आकर खड़ा हो जाता है जिस पॉइंट पर उसने शुरुआत की थी, ओ पॉइंट पर. इसलिए उसकी इनिशियल पॉइंट ऑफ ट्रेवलिंग और एंडिंग पॉइंट ऑफ ट्रेवलिंग जो है वो सेम पॉइंट है, वो ओ है. यहां पर आकर उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है. इस यहां पर आपको ये भी समझने वाली बात है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अंतर होता है. डिस्प्लेसमेंट होता है कि एक ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रेवल किया है, वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल को हम डिस्टेंस में काउंट करते हैं. जबकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट के स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. डिस्प्लेसमेंट हमें डायरेक्शन के बारे में भी बताता है. अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड. ए फार्मर मूव्स along the boundary of a sphere field of the side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? Answer: here side of the sphere field ABCD 10 meter. So the perimeter of the sphere field is 10 meter multiplied by 4, that is 40 meter. Time taken by the farmer in moving around the 10 meter square field is equal to 40 seconds. Time for journey of farmer 2 minutes 20 seconds. We will change it into seconds, which will come is equal to 140 seconds. Distance is covered by the farmer in 40 seconds is equal to 40 meter. So distance covered by the farmer in 140 seconds is equal to 140 meter. Number of times the farmer moves around the square field in 140 seconds is equal to total distance divided by perimeter, which comes 3.5 times. So after 3.5 rounds, the farmer will be at point C, which is diagonally opposite to the point A. So magnitude of displacement AC is square root of 10 meter square plus 10 meter square का अंडर रूट.
So our answer will be 14.14 meter. You will also note that this displacement has been calculated as per the Pythagorean theorem, which says if a triangle is a right triangle, then the sum of the squares of the lengths of the legs is equal to the square of the length of the hypotenuse. अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। इसमें बताया गया है कि एक फार्मर जो है वो अपने स्क्वायर फील्ड में की बाउंड्री के साथ साथ चलता है और इसकी एक साइड जो है फील्ड की वो 10 मीटर की है और वो जो सारी बाउंड्री कवर करता है, यानी कि वो ए पॉइंट से चलकर बी, सी और डी को कवर करता हुआ जब वो ए पर वापस आता है तो उसको 40 सेकंड्स लगते हैं। अब हमने ये बताना है कि फार्मर जो है वो 2 मिनट्स और 20 सेकंड्स के बाद में अपनी इनिशियल पोजीशन से कितनी डिस्प्लेसमेंट पर होगा। इसका आंसर दिया हुआ है कि सबसे पहले हमने इस जो स्क्वायर है ABCD, इसका एक साइड को कैलकुलेट किया है कि एक साइड है 10 मीटर की। अब हमने इसके पेरीमीटर क्या होता है, जो टोटल स्क्वायर है उसकी टोटल जो है उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका पेरीमीटर आ जाता है, वो हमारा आ गया 40 मीटर। अब जो फार्मर है उसको 40 मीटर ट्रेवल करने में 40 सेकंड्स लगे हैं। अब हमने देखना है कि वो 2 मिनट्स और 20 सेकंड्स में कितना ट्रेवल करता है, तो हम 2 मिनट्स और 20 सेकंड्स को सेकंड्स में ट्रांसफर करते हैं और वो आ जाते हैं 140 सेकंड्स। अब हम देखते हैं कि 140 सेकंड्स में जो फार्मर है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। वो लगभग 3.5 टाइम्स वो उस स्क्वायर फील्ड को ट्रेवल कर पाता है। अब 3.5 राउंड्स करने के बाद 3.5 राउंड्स को ट्रेवल करने के बाद फार्मर जो होगा, ये देखिए आप, ये यहां से शुरू होगा, ये एक पॉइंट आ गया, एक राउंड। जब ये दूसरी बार चलेगा ये दूसरा राउंड आ गया, ठीक है, ये दूसरा राउंड यहाँ खत्म हो गया। अब ये तीसरा राउंड चलेगा, ये तीसरा राउंड भी यहाँ पर खत्म हो गया, पर अब उसके पास सिर्फ आधा राउंड बचा है। आधा राउंड का मतलब वो यहाँ से शुरू होगा ए से और सी तक ही पहुंच पाएगा। सो ए पॉइंट से चलकर वो सिर्फ सी पॉइंट तक ही पहुंच पाएगा, विच इज डायगोनली, जो कि डायगोनली ए पॉइंट के बिल्कुल भी ऑपोजिट में होगा। अब जो डिस्प्लेसमेंट हुई है इसको कैलकुलेट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरियन थ्योरम जो होती है उसकी हेल्प लेते हैं, जो ये हमें बताती है कि जो लेग्स होती हैं, जो जिनकी साइड छोटी होती हैं, ये आपके सामने AD और CD हैं, वो ये लेग्स हैं, इनको स्क्वायर रूट करके वो दूसरी साइड जो होती है वो उसका AC स्क्वायर आ जाता है। यहाँ पर हमने उसी हिसाब से जो है वो डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, which of the following is true for displacement? Question A, displacement cannot be zero. Answer, false. Displacement can be zero when the initial and the final position of the object is the same. हमने पहले ही आपको बताया है कि जैसे सपोज करो हम एक पॉइंट से चलते हैं, ये ए पॉइंट है, ठीक है, हम यहाँ से बी पॉइंट को जाते हैं, फिर हम यहाँ से सी पॉइंट को जाते हैं, यहाँ से डी पॉइंट को जाते हैं, यहाँ से फिर ए पॉइंट को आ जाते हैं। यानी कि हम जिस पॉइंट से चले थे हम वही पॉइंट पर वापस आ गए हैं, यानी कि हमारी जो इनिशियल पोजीशन थी वही हमारी एंडिंग पोजीशन है, इसलिए यहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है। प्लीज नोट, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इवन जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, its magnitude is greater than the distance traveled by the object. Its magnitude means magnitude of displacement. Answer is false. Displacement is the shortest measurable distance between the initial and the final position of the object. Displacement is less than or equal to the distance traveled by the object. यहाँ इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है वो वैसे नॉर्मल डिस्टेंस ट्रेवल से ज्यादा होती है, तो इसका आंसर है फॉल्स। डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो कभी भी डिस्टेंस ट्रेवल से ज्यादा नहीं हो सकती, ये हमेशा
डिस्टेंस ट्रेवल्ड के इक्वल या उससे कम ही होती है। जैसे अगर आप इस एग्जांपल को देखें, ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि सपोज करो यहां से कोई पर्सन ट्रेवल किया है ए से बी, बी से सी और सी से डी गया। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये इन्होंने 10 मीटर और 10 मीटर ट्रेवल किया, तो आप देखेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 10 प्लस 10 20 मीटर, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज दिस वन विच इज very much less than the distance traveled. Next question, distinguish between speed and velocity. Speed, it is the distance traveled by an object per unit of time. On the other side, velocity is the distance traveled by an object in a particular direction per unit of time. That is, in velocity we take care of not only distance, we also take care of direction. Next, speed tells us how fast an object moves. On the other side, velocity tells us how fast an object moves and in which direction. Third, speed is a scalar quantity. It has only magnitude. Magnitude means distance only. On the other side, velocity is a vector quantity. It has magnitude as well as direction, distance plus direction. Average speed of a moving object cannot be zero. On the other side, average velocity of a moving object can be zero. Fifth, speed of an object is always positive. Speed of an object can never be negative. On the other side, velocity of an object can be positive or negative. Next question 2. Under what condition is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed? Answer. The magnitude of average velocity of an object is equal to its average speed when the object moves in a straight line without changing its direction. We are giving here below just the explanation of this point so that this question answer is very clear to you. A car moves from point A to B in 1 hour. Here time taken is 1 hour. Distance traveled is 10 km. Speed shows only magnitude. Distance covered only. Velocity shows magnitude, that is distance as well as direction. Average speed is equal to distance traveled oblique time is equal to 10 km per hour. Magnitude of average velocity over time is equal to magnitude of displacement over time 10 किलोमीटर पर आवर। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसके मैग्नीट्यूड में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, यानी कि दोनों सेम होते हैं। आंसर है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के मैग्नीट्यूड जो होता है वो इक्वल होता है, जबकि वो ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में बिना किसी डायरेक्शन को चेंज किए हुए मूव करता है। इसको क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ एक एग्जांपल दी हुई है कि एक कार जो है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट को मूव करती है 1 आवर में और वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है 10 किलोमीटर। अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड शोज ओनली डिस्टेंस. On the other side, velocity shows distance as well as direction. So average speed is equal to distance traveled by time. Answer is 10 km per hour, or magnitude is also the distance. So distance of average velocity, magnitude of average velocity over time is equal to magnitude of displacement over time is equal to 10 km. Question 3. What does the odometer of an automobile measure? Answer. The odometer odograph of an automobile measures the distance traveled by the vehicle. Fourth, what does the path of an object look like when it is in uniform motion? Answer. The path of an object looks like straight line when it is in uniform
motion. Question 5th. During an experiment, a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light, that is 3 multiplied by 10 power 8 meter per second. Answer. Here time given is 5 minutes, that is 300 seconds. Speed is given as 3 into 10 power 8 meter per second. Distance is speed multiplied by time. So answer is 9 multiplied by 10 power 10 मीटर. इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि स्पेसशिप से जो सिग्नल ग्राउंड स्टेशन को आ रहा है वो 5 मिनट्स में आता है. अब हमने ये देखना है कि स्पेसशिप की डिस्टेंस जो है वो ग्राउंड स्टेशन से कितनी है. सिग्नल जो है उसकी स्पीड हमें बता दी गई है. ठीक है, यहां पर हमें टाइम का पता है, स्पीड का पता है, और डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. तो हम स्पीड को मल्टीप्लाई करते हैं टाइम से और हमारा आंसर आ जाता है. इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन टाइम एज वेल एज स्पीड एंड वी आर सिंपली टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बाय मल्टीप्लाइंग स्पीड एंड टाइम. Next question 1. When will you say a body is in uniform acceleration? Second, non-uniform acceleration. Answer. When a body travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amounts in equal intervals of time, then the body is in uniform acceleration. The motion of a freely falling body is an example of uniformly accelerated motion. This uniform acceleration has been shown in this picture where the body is covering equal distance in equal interval of time. On the other hand, when the velocity of a body changes by unequal amount in equal intervals of time, then the body is in non-uniform acceleration. For example, if a car traveling along a straight road increases its speed by unequal amount in equal intervals of time, then the car is said to be moving with non-uniform acceleration. Here, this side shows non-uniform acceleration where the velocity of the car is changing in equal intervals of time. यहाँ इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होता है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होता है. तो इसका आंसर है कि अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और उसकी वेलोसिटी जो है वो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज या डिक्रीज होती है और वह तब डिक्रीज या इंक्रीज होती है और उसके जबकि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को ले रही है, तो उस बॉडी को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कहते हैं. अगर कोई भी बॉडी फ्रीली फॉल करती है एयर में से तो इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में कहते हैं. यहाँ पर आप इस साइड में देखेंगे कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है क्योंकि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. और दूसरी तरफ इस पिक्चर में दिखाया गया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो उसकी वेलोसिटी है वो चेंज होती जा रही है. Next, question 2. A bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. Answer. Initial speed of the bus u is equal to 80 km per hour. Final speed of the bus is 60 km per hour. As the speed of the bus has decreased, so here the time taken is given as 5 seconds. Since time is given here in seconds, we have to convert the above figure kilometer per hour. We have to convert the figures into meter per second. Here the formula for converting the figures of kilometer per hour into meter per second is given as in shown here. So initial velocity we have been given as 80 km per hour. We will multiply it by 5 over 18
and the initial velocity will come into meter per second. In the same way, we will calculate the final velocity, which is here given in kilometer per hour as 60 kilometer per hour. We will multiply it by 5/18 and the final velocity will come as converted into meter per second. We calculate now the acceleration of the bus. The formula is final velocity minus initial velocity divided by time. So we will find that the acceleration is given in minus. Acceleration is given in minus because here the speed has decreased. So the acceleration is given in minus. तो हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं. इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक बस की स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक डिक्रीज की गई है और इस स्पीड को कम करने में 5 सेकंड्स का समय लगा है और हमें एक्सेलरेशन बस की ढूंढनी है. यहाँ पर आप देखेंगे कि शुरुआत में जो है इसकी स्पीड है बस की वो 80 किलोमीटर है. सो u जो है वो 80 किलोमीटर है और जो फाइनल स्पीड है वो 60 किलोमीटर है. इसलिए v की वैल्यू जो है 60 किलोमीटर आ गई. हमें टाइम जो है 5 सेकंड्स का दिया हुआ है. यहां पर जो पिक्चर में आपको बताया गया है कि ये जो फिगर्स आपको दी हुई हैं ये आपको किलोमीटर पर आवर में दी हुई हैं. इसलिए हम इन फिगर्स को, ये जो दो फिगर्स हैं ऊपर वाली, इन दोनों फिगर्स को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में. इसका जो फार्मूला है ये आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है कि हम किलोमीटर को 1000 मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं और आप जानते ही हैं कि 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं. इसलिए जब हम 1 किलोमीटर ओवर 1 आवर को मीटर पर सेकंड में ट्रांसफर करना है या कन्वर्ट करना है तो हम उस फिगर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हमारी जो फिगर्स हैं वो मीटर पर सेकंड में आ जाती हैं. यहाँ पर हमने इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट कर लिया है. और अब हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम से. और हम देखते हैं कि हमारा आंसर माइनस में आता है. वो इसलिए माइनस में आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड है वो कम हो रही है, वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है. इसलिए एक्सेलरेशन का जो आंसर है हमारा वो माइनस में आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड. ए ट्रेन ट्रेवलिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 minutes. Find its acceleration. Answer. Since the train starts from rest, its initial speed is equal to 0 kilometer per hour. Final speed of the train is equal to 40 kilometer per hour. Here we have given time as 10 minutes. We will convert it into seconds, which is equal to 600 seconds. Since the time taken is in seconds, we have to convert the initial and final speed from kilometer per hour into meter per second. For this purpose, as already told in the previous question, we have to multiply the figures of kilometer per hour by 5/18. So initial velocity जो है you can find that initial velocity is calculated by measuring each figure by 5/18 and here is the initial velocity which has come into meter per second. In the same way, we calculate the final velocity by multiplying the kilometer per hour figures by 5/18 and the result is in meter per second. Then we find the acceleration as final velocity minus initial velocity divided by time and here is the answer before us. हम इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं कि एक ट्रेन जो है वो एक रेलवे स्टेशन से चलना शुरू हुई है और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चलती चलती उसने स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर की अटेन कर ली है और इस स्पीड को अटेन करने में उसको 10 मिनट्स का समय लगा है. हमने एक्सेलरेशन को ढूंढना है. आंसर है कि जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो वह पहले रेस्ट में होती है, उसकी इनिशियल स्पीड
जीरो होती है तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो आएगी। अब जो स्पीड है उसने पकड़ ली है और उसकी स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर पर आ गई है, तो यहाँ पर हमारी फाइनल वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब इस ट्रेन ने जो ये स्पीड अटेन की है 40 किलोमीटर पर आवर, वो 10 मिनट्स में अटेन की है। इसका मीनिंग है कि उसने 600 सेकंड्स लिए हैं। अब हमने टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया है, पर जो हमें यहाँ पर इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड दी हुई है वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। हम इन फिगर्स को भी मीटर पर सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमको इन फिगर्स को इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड जो है, इन फिगर्स को हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, फार्मूला बताया था कि किलोमीटर पर आवर को हमने अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमको उस फिगर को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इस तरह हम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं और बाद में एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम करते हैं और हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन की फिगर्स आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ यू लाइक आवर कोर्स, please spare some time to give a star rating to our course. Thanks.